Hi there, welcome to Distaget Career Launchpad course. Well, my name is Vikas Sharma and I'm your coach and trainer for this course. I have 15 plus years of experience in corporate and startups. Well, in this course, you will learn how to get into your dream job and company in next 30 days. The question is it possible? Is it possible to get into your dream job and company in next 30 days? Yes, it's possible if you follow the complete strategies and process which I'm going to tell you in this entire course. I guarantee you, if you follow the complete process, complete strategies step by step, then you will get into your dream job in next 30 days, right? So let's start. First of all, thank you and congratulations. Thank you for choosing us as your career partner, for trusting us, and congratulations because you have taken a wise decision by buying this course, by purchasing this course. And I guarantee you that you will get the 10 times of value what you have spent on this course, right? So this is my bold promise in the beginning of this course. Well, this lesson is very important, so please don't skip this lesson. Watch this till the end. ओके आपको ये जो लेसन है ये स्किप नहीं करना है, प्लीज इसको एंड तक जरूर देखें, इसमें आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है. वेल, लेट्स टॉक अबाउट हु इज दिस कोर्स फॉर. ये कोर्स है किसके लिए? बाय द वे, दिस विल बी इन दी बाइलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कोर्स होगा, बिकॉज मैंने दोनों काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ये बनाया है. सो लेट्स टॉक अबाउट हु इज दिस कोर्स फॉर. First of all, this course is for all the students, they either they have passed out from their college or they are studying in the final year of their course or they are going for the campus placement. This course is perfectly for you. आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कैंपस प्लेसमेंट में जा रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है. And of course, this course is for everyone who is actively looking for the job. All the job seekers, जितने भी job seekers हैं, उनके लिए ये course perfectly match करता है. Okay? So, what you will learn, आप इसमें सीखने क्या वाले हो उसके बारे में बात करते हैं. So, you will learn all the strategies and step by step guidance on how to get a dream job. मैं आपको इस पूरे इंटायर कोर्स में वो स्ट्रेटजीज बताऊंगा, वो गाइडेंस आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप, जिनकी हेल्प से आप नेक्स्ट 30 डेज में अपनी जॉब पा सकते हैं. बाय द वे, डू यू नो, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्टूडेंट्स पास आउट फ्रॉम कॉलेजेस. हर साल कॉलेज से 1 करोड़ स्टूडेंट पास आउट होते हैं. Okay, that is a huge number, right? But only 26% get their job, right? आप देख सकते हो, rate of hiring amongst graduate, it's only 26%. Rest of the people, they don't get the job. So this situation is very critical. आप मान के चलिए कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स पास आउट होता है, उसमें से सिर्फ 26 लाख को ही जॉब मिलती है, बाकी कितना ह्यूज नंबर है जिनको जॉब नहीं मिलती है. सो क्रिटिकल सिचुएशन है ये, इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन एंड यू नीड टू बी वरीड अबाउट, राइट? यू नीड टू बी वरीड अबाउट दिस सिचुएशन. सो द रीजन, you must ask what are the reasons for this situation. आप ये सारे, इसका रीजन क्या है इस पूरी सिचुएशन का, राइट? सो रीजन इज आवर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम्स आर ब्रोकन. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है वो कम्प्लीटली ब्रोकन है. वी फॉलो द वेरी ओल्ड वे ऑफ टीचिंग. सो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है जो हमारे प्रैक्टिकली काम आ सके हमारी जॉब में. वी डोंट लर्न एनीथिंग प्रैक्टिकल, राइट, विच वी कैन यूज इन आवर जॉब. सो दैट इज अ ह्यूज गैप बिटवीन the employment status and the your education status, right? And second is the employment system is broken. Why? Because we are not able to produce as much of job which is required, जो इनको accommodate कर सके इन 1 करोड़ स्टूडेंट्स को. So employment system भी हमारा broken है, right? Now the question is कि जो 1 करोड़ में से 26 लाख लोगों को जॉब मिलती है, उस 26 लाख में हमें कैसे आना है, इसके लिए ये कोर्स है. ये you will learn how to come on among those 26% which able to get the job, right? So some of the reasons I'm going to tell you कि कुछ और reasons हैं जिनकी वजह से हम अपनी ड्रीम जॉब या कोई भी जॉब नहीं पा पाते हैं. The first reason is the required skills. This is the 50% of the reasons, right? जितने भी reasons हैं उनमें ये सबसे बड़ा reasons है required skills. Because As I told you, our education system is broken. हम कुछ भी ऐसा प्रैक्टिकली नहीं सीखते हैं, ऐसा कोई स्किल हमारे अंदर नहीं होती है जो हम अपनी जॉब में अप्लाई कर सकें. देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट आपको दे रहा है ना, जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है, उसको आपसे काम चाहिए, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसके लिए काम करके दे.
उसके अंदर ऐसी कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जॉब रेडी स्किल्स होनी चाहिए जिसको वो अप्लाई कर सके अपनी जॉब में. सो रिक्वायर्ड स्किल्स इज द नंबर वन बिगेस्ट रीजंस ऑफ नॉट गेटिंग द जॉब. सेकंड रीजन है पुअर रेज्यूमे. ठीक है, अब आपके अंदर अगर स्किल्स भी हैं तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रेज्यूमे ढंग से नहीं बना पाते हैं, उनका रेज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं हो पाता है इंटरव्यू के लिए. दिस इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन. थर्ड बिगेस्ट रीजन इज द रॉन्ग मेथड्स टू सर्च अ जॉब. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू सर्च अ जॉब विद द प्रॉपर मेथड्स, राइट. उनको जॉब सर्च करना नहीं आता है. नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरव्यू स्किल्स. उनको इंटरव्यू स्किल्स नहीं आती हैं. उनके पास स्किल्स भी है, उनके पास नॉलेज भी है, बट वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल, दे डोंट हैव द इंटरव्यू स्किल्स सो दैट दे कैन फेस द इंटरव्यू, दे कैन आंसर प्रॉपरली इन द इंटरव्यू. उनको इंटरव्यू स्किल्स नहीं आती है, उनको पता नहीं होता कि कैसे प्रिपरेशन करके जाना है. एंड द लास्ट रीजन इज अप्लाइंग फॉर रॉन्ग जॉब. कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्किल्स को ध्यान में न रखते हुए किसी गलत जॉब को अप्लाई कर देते हैं. वी अप्लाई फॉर अ रॉन्ग जॉब एंड दैट्स द रीजन वी डोंट गेट सिलेक्टेड. हमें जॉब नहीं मिल पाती है. ये कुछ रीजंस हैं, इनके अलावा और भी कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जॉब नहीं मिल पाती है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो what are the top reasons for not getting job. आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल पाती है, राइट. सो these all are the reasons why you don't get the job. Let's talk about how to differentiate yourself, right. देखो अभी क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि 1 करोड़ स्टूडेंट पास आउट होता है, हर कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है, बट ओनली 26 लाख लोगों को ही जॉब मिल पाती है. अब उन 26 लाख में आने के लिए आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. आपको अपने जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं आपके साथ में, उनसे कुछ अलग करना होगा, उनसे बेटर करना होगा. यू नीड टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन गेट द जॉब. अगर आप इन्हीं लोगों की तरह रहेंगे तो डेफिनेटली उसी रेशो में आ जाएंगे जो जॉब नहीं पा पाते हैं. ओके, सो I will teach you the steps for getting your dream job. इस इंटायर कोर्स में मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ. बाय द वे ये जो कोर्स है ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट को आपको 1 by 1 वॉच करना है, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है. ठीक है, सो आई विल लेट यू नो द स्टेप्स फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब. यस, गेटिंग ए ड्रीम जॉब इज a strategic process. एक जॉब पाना एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है. यू नीड टू फॉलो सम सर्टेन स्टेप्स. आपको कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने हैं तभी आपको जॉब मिलेगी. बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को स्किप कर देते हैं, इसको मिस कर देते हैं, इनको पता ही नहीं है कि प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स लेने हैं. इसी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती है और आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. ओके, यू नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. इससे पहले कि मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊं, उनको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, बट आपको एक चीज समझने की जरूरत है, वो है कि एकेडमिक्स मार्क्स आर नो मोटिव. बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे 99% मार्क्स हैं, 98% मार्क्स हैं, यानी 90+ % मार्क्स हैं तो हमें जॉब इजीली मिल जाएगी. नो, एकेडमिक्स मार्क्स आर नो मोटिव. और मैं तो यह कहूँगा कि किसी भी इंटरव्यू में आपको एकेडमिक्स मार्क्स कोई नहीं पूछता. Nobody asks you how much you have obtained in your 10th, 12th or in your graduation, right? Academics marks are no good enough. Okay? What you need? You need job ready skills. आपको ना academics से ज़्यादा job ready skills पे फोकस करना है. आपको वो skills अपने अंदर पैदा करनी है जिनसे आपको जॉब मिलेगी. Those are the job ready skills. और job ready skills कौन कौन सी होती हैं? इनमें hard skills होती हैं और इनमें soft skills होती हैं. Okay? So job ready skills consist the hard skills and soft skills. अब आप बात करेंगे कि hard skills क्या होती हैं. So hard skills are technical skills that help you to perform your job task. आप जो जॉब करते हो उसको परफॉर्म करने में ये हार्ड स्किल्स काम आती है, टेक्निकल स्किल्स काम आती हैं. यहाँ पर मैंने कुछ हार्ड स्किल्स के बारे में लिखा है, ये सारी हार्ड स्किल्स नहीं है. सम ऑफ द स्किल्स आई हैव मेंशन्ड हियर लाइक द कंप्यूटर नॉलेज. आपको कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है. आपको MS ऑफिस की नॉलेज होना जरूरी है जिसमें एडवांस एक्सेल है, PPT है, पावर पॉइंट है, राइट. ईमेल राइटिंग आपको आना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू राइट अ ईमेल. You should have the good communication. See, good communication is very important, right? Good communication is the number one requirement to get into your dream job.
ओके, सो आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू हाउ यू नो कम्युनिकेट इन इंग्लिश. No, spoken English is one of the part, right? But how you communicate yourself, right? That is something which you can say that yes, I have the good communication. Next is data analytics है, programming skills है, digital marketing है, finance accounting knowledge है, generative AI है. These are some of the hard skills I have mentioned here. There's a lot of other hard skills which we have in the market, right? So आपके अंदर hard skills का होना बहुत जरूरी है. Next is the soft skills. Soft skills क्या होती है? Soft skills are the non-technical skills that impact your performance in the workplace. Right? देखो hard skills का होना ही काफी नहीं है. आपके अंदर soft skills का होना भी जरूरी है. जो employer या जो recruiter आपको job देगा, वो आपकी hard skills को तो check करेगा ही करेगा. आपकी soft skills को भी check करेगा. आपकी टीम वर्क को चेक करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करेगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट एबिलिटी को चेक करेगा, क्रिएटिव थिंकिंग को चेक करेगा, लीडरशिप, वर्क एथिक्स एंड लॉट ऑफ अदर सॉफ्ट स्किल्स, राइट? अब इस सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए मैं आपको आगे बताऊं, ठीक है? बट यू नीड टू लर्न दैट यू नीड स्किल्स. एंड व्हाट स्किल्स? हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. ओके, दैट इज द नंबर वन प्रायोरिटी एंड रिक्वायरमेंट. अगर आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है तो आप कोई भी जॉब नहीं पा सकते हैं. आप खुद सोचिए कि लेट से अगर आप एक अकाउंटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको अकाउंटिंग ही नहीं आता है, ठीक है, तो क्या आपको जॉब मिलेगी? आप सोचिए कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके अंदर सॉफ्टवेयर स्किल्स ही नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं पता, आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है आपके अंदर, तो क्या आपको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी. तो वो हो गया हार्ड स्किल्स. बट आपको नॉलेज है लेकिन आप टीम वर्क में बहुत कमजोर हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत गंदा है, आप लीडरशिप स्किल्स नहीं है या क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, तो भी जॉब नहीं. तो आपको ना एक कॉम्बिनेशन बनाना है. बहुत सारे लोग फोकस करते हैं सिर्फ हार्ड स्किल्स पे कि भाई मेरे अंदर हार्ड स्किल्स है तो मुझे जॉब मिल जाएगी. नो, इट्स नॉट मोर इनफ. हार्ड स्किल्स आर नॉट मोर इनफ. आपको सॉफ्ट स्किल्स भी होना चाहिए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 1. देखो, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सारी स्टेप्स हैं और हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, ठीक है? इस लेसन में मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है? आपको मैं डिटेल में सारे सेक्शंस हैं जो आगे आने वाले, उनमें मैं आपको डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल. ओके, सो द स्टेप नंबर 1 इज क्रिएटिंग ATS फ्रेंडली रेज्यूमे. Okay, ATS friendly resume. What it is? See, in spite of having the required skills and talent, more than 80% of people get rejected even before the interview because their resume is not getting selected by ATS. By the way, ATS is a software. I will explain this. There's an entire course on resume making, so you will learn about this in that section. Okay, so ATS is a software which most of the companies use. And lot of people get failed. More than 80%, by the way, more than 80% of people get rejected because ATS reject their resume. They have the skills, they have the ability, but their resume is so poorly created that ATS doesn't select it. So यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपका जो रेज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो हम ATS फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, ATS फ्रेंडली रेज्यूमे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीटली एंटायर सेक्शन है इस कोर्स में, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की. स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है जहां पर आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली हो जाता है. उसके बाद आता है क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोफाइल ऑन जॉब पोर्टल्स, राइट? 90% plus job seekers, they don't have a fully optimized profile on job portals. See, इस कोर्स को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से, बहुत सारे जॉब सीकर्स से बात की है और 90% जो जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन मैंने जो फाइंड आउट किया है वो ये है कि उनके जो प्रोफाइल है, जो जॉब पोर्टल्स पे वो प्रोफाइल बनाते हैं. जॉब पोर्टल कौन कौन से होते हैं? naukri.com है, monster.com है, indeed.com है. ये वो पोर्टल हैं जो आपको हेल्प करते हैं जॉब अप्लाई करने में. यहाँ पर रिक्रूटर्स जो होते हैं, एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, वो जॉब्स डालते हैं और आप वहाँ पर जाके अपना प्रोफाइल बना के उन पर अप्लाई करते हो. तो मैंने देखा है
कि 90% जॉब सीकर्स का ना फुल्ली ऑप्टिमाइज प्रोफाइल नहीं होता, दे आर नॉट डिस्कवरेबल। देखो समझो इस चीज को, देयर आर मिलियंस ऑफ प्रोफाइल क्रिएटेड ऑन दोज जॉब पोर्टल्स, राइट? मिलियंस ऑफ जॉब पोर्टल्स पे प्रोफाइल बने हुए हैं। आपको प्रोफाइल हाउ यू कैन बी डिस्कवरेबल, राइट? आपको कैसे सर्च कर सकता है एक एम्प्लॉयर, आपको आना चाहिए। यू नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ फुल्ली ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, ताकि जब भी कोई जॉब अप्लाई हो या मतलब कोई पोस्ट हो तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आए, आपका प्रोफाइल सर्च में दिखे, है ना? क्योंकि जो एज ए एम्प्लॉयर लोग जब आप पोर्टल पे सर्च करते हैं सुटेबल कैंडिडेट्स को, तो आपका प्रोफाइल सर्च में आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा उसके बारे में हम एंटायरली बात करेंगे। अभी यहाँ सिर्फ मैं आपको स्टेप्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? दिस इज द स्टेप नंबर 2। आपको चाहिए एक फुल्ली ऑप्टिमाइज प्रोफाइल सारे जॉब पोर्टल्स पे, जो मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में। स्टेप नंबर 3, क्रिएटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। गाइस, 70%, more than 70% recruiters look at your LinkedIn profile while selecting and finalizing for a job. जब वो एक फाइनलाइजिंग कर रहे होते हैं ना जॉब के लिए आपको, तो वो आपका प्रोफाइल चेक करते हैं। 70% से ज्यादा रिक्रूटर्स ये चेक करते हैं। और अगर आपका फुल्ली ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको हायर करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ ना वो डेटा फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? You need a fully optimized LinkedIn profile to attract more recruiters, okay, and to get selected in the job. तो यहाँ पर आपको कैसे एक प्रोफाइल क्रिएट होता है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, वो मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एज आई टोल्ड यू, मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ। स्टेप्स को ध्यान में रखना, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, ठीक है? स्टेप नंबर 4 इज इफेक्टिवली सर्चिंग एंड अप्लाइंग द जॉब। सी, मोस्ट ऑफ द टाइम people hit the job apply button without thinking twice, and when they don't get selected, they don't get any interview calls, they wonder why I'm not getting the job interview calls, right? So this is very much important that you know how to search the correct job and how to apply the right job. आपको ये आना चाहिए। सर्चिंग ये एक स्किल है भाई। Searching is a skill. You need to learn how to search the job effectively and apply the right job. Okay, so relevant job. I will let you know how to search and apply the relevant job so that you don't get to face this issue. Okay, yeah, because this is one of the biggest reasons why lot of people don't get the job. And step number 5 इज द इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखिए अभी तक हमने बात की कि अगर आपका रेज्यूमे अच्छा है, आपको जॉब पोर्टल पे आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है, आप अच्छे से सर्च करना जानते हैं, जॉब अप्लाई करना जानते हैं, तो आपका आधा काम हो गया, आपके 4 स्टेप्स पूरे हो गए। अब आपको आती है इंटरव्यू की कॉल। इंटरव्यू की कॉल आई, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है या आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, तो अब बात आती है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। सी, most candidates get rejected in interview because they are not prepared enough for their job interview, क्योंकि वो enough prepared नहीं है job interview के लिए। So you need to learn how to prepare for the job interview, right? Lot of people they don't even know how to get prepared for the job interview, right? So ये बहुत बड़ा रीजन है। I will let you know how to prepare for your interview. कैसे आपके अटायर होंगे, कैसे आपको वहाँ पर जाना है, किस तरीके से रिक्रूटर से बात करनी है, क्या तरीके होते हैं कि रिक्रूटर को इम्प्रेस किया जाए, अपने स्किल्स को शोकेस किया जाए। There's a lot of things, how to answer smartly, how to be true in front of the interviewer. So ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस कोर्स में। So you will learn the complete process, right? And most of the time you need to face some aptitude test and group discussion. देखिए कोई भी इंटरव्यू ना सेलेक्ट करने के लिए और because see understand this thing, एक जॉब के लिए करीब 200 से 300 एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है? अगर कोई कंपनी में एक जॉब निकली हुई है तो उससे 200 से 300 उनकी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, 200 से 300 एप्लीकेशंस आती हैं। अब 200 इंटरव्यू लेना, 200 लोगों को स्क्रीनिंग करना बहुत मुश्किल है। तो उसको स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, कैसे एक अच्छी ग्रुप को निकाला जाए जिनका इंटरव्यू लिया जाए, उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट रखती हैं, वो ग्रुप डिस्कशंस रखती हैं।
तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे ग्रुप डिस्कशन प्रिपेयर करना है, कैसे ग्रुप डिस्कशन को पास करना है, वो भी मैं आपको इस कोर्स में बताने वाला हूँ. सो you will learn everything. You will learn everything to get your dream job. But you have to follow these steps. You have to follow these steps. Please don't skip any step. आपको लगता है कि यार रेज्यूमे जरूरी नहीं है, या जॉब पोर्टल पे प्रोफाइल बनाना ऑप्टिमाइज करना जरूरी नहीं है, या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना जरूरी नहीं है. नहीं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है. आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है. सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, राइट. एंड हियर इज अ डिस्क्लेमर. देखो, बाय लॉ वी कैन नॉट एंड डू नॉट मेक एनी गारंटी अबाउट योर एबिलिटी टू गेट रिजल्ट्स और गेट जॉब विद आवर आइडियाज, इंफॉर्मेशन, टूल्स एंड स्ट्रेटेजी. देखो, वैसे ये बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है. सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो हमें थैंक यू बोलते हैं जब ये फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, राइट. उनको जॉब लग जाती है. बट हम गारंटी नहीं लेते, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. हाउ डेलिबरेटली and how honestly you follow these steps and processes. So I request you, please follow the complete steps and strategies. नहीं तो कल को आके आप ही बोलोगे कि सर हमें हमारी जॉब नहीं लगी, हमने तो कोर्स खरीदा. कोर्स खरीदना काफ़ी नहीं है. स्टेप्स को फॉलो करना, प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है. अगर आप ये स्टेप्स और प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि सच में आपको जॉब लगेगी. This is my guarantee. Otherwise, I will refund the money. Okay? मेरा refund program है इसके लिए, right? You can ask for the refund, but please follow the complete steps. Alright? So इसके साथ ये lesson complete होता है. हम मिलेंगे अगले lessons में जहाँ पर हम बात करेंगे resume में, okay? और बाकी सारे steps की. So see you in the next section and next lesson. Bye bye.